میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں واحد اینکر ہوں جو الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ان کا انٹرویو کر رہا ہے. میں اپنی امی کی جانب بڑھوں گا. میں بہت خوش نصیب ماں ہوں. میں اس قابل نہیں تھی جو اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا. آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے. اچھا امی مجھے بتائیں, جب ہم پروگرام کرتے ہیں نا ہاں جی, تو لوگ مجھے گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو مجھے بتائیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے. کہ آپ ابو مجھ کو بتائیں کہ آپ دونوں کی شادی یہ آپ کے امی ابو نے کرائی یا آپ نے امی ابو سے کہا کہ بھائی ہم کرنا چاہتے ہیں؟ میری امی جو تھی وہ ان کے ہاں گئی اور وہاں پہ جا کے رشتہ مانگا. آپ کو پسند آئی ہوں گی امی ویسے پہلے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہم ایک شہر میں رہتے تھے. تحائف ہمارے سامنے ہے مگر جو امی ابو کی جانب سے ہے وہ یہ ہے. یہ ہے کیا اس میں مجھے تو بتائیں. یہ ہے 15 پرو میکس اچھا نیچرل ٹائٹینیم. آپ کھینچیں ہم گے؟ آپ کھینچ دیں, آپ کھینچ دیں, کھینچ دیں, کھینچ دیں. آئی فون 15 پرو میکس نیچرل ٹائٹینیم ہاتھ میں رکھ رہا ہوں. یہ ایک میری اور میری مسز کی طرف سے, آپ کی ماں کی طرف سے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 7 دسمبر سن 2000 میرے ماں باپ کی زندگی میں یہ خاص دن تھا, اور کیوں نہ ہو, انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا کہ جو اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق رکھتا ہے اور ان کے نام پر اپنا تن من قربان کرنے کو تیار ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو چونکہ اس کو والدین ایسے ملے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری ماں کا شکم خلد کی شاخ ہے کیونکہ اس نے اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق رکھنے والے بیٹے کو جنم دیا اور وہ پروان چڑھتا رہا. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ گو کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور پڑھے لکھے والدین نے ایک پڑھے لکھے بیٹے کو جنم دیا. میں تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہا. آج میرا ایک اور سال گر گیا اور میں کچھ شکوے شکایات بھی کروں گا. میرے جو 7 ہستیاں موجود ہیں یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا. آج جو پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا پروگرام ثابت ہونے والا ہے, اور جو ہستیاں میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف بھی میں کروانے والا ہوں. بات کر رہا تھا پڑھا لکھا ہونے کی. بیٹا اس وقت پڑھا لکھا ہوتا ہے جب والدین پڑھے لکھے ہوں. میری ماں بہت پڑھی لکھی ہے لیکن میری ماں بہت ان پڑھ ہے. چونکہ مجھ سے اتنی محبت رکھتی ہے کہ میں آج بھی 1 روٹی مانگوں تو 2 لے آتی ہے. ابھی بھی اس کا حساب کتاب پکا نہیں ہوا. ان پڑھ ہے نا میری محبت. اور باپ کی کیا بات کروں, معمار ہے, عامر ہے, تعمیر کرتا ہے, محبت کرتا ہے. میرا لکھنا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, گرنا, گر کر اٹھنا, لوگوں کو سہارا دینا, لوگوں کو کندھا دینا. اور مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ بڑی شخصیات سے وقت کیسے لیتے ہیں. وقت ڈاکٹر احمد نصیر کیسے لے سکتا ہے جب تک کہ ان کو اپنا وقت نہ دے. یہ مجھ کو وقت عطا فرماتے ہیں تو لوگ مجھ کو وقت دیتے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی کہ آج الحمدللہ میرا جنم دن ہے اور میں اپنی جنتوں کے بیچ میں موجود ہوں. جنت بھی موجود ہے, دروازہ جنت بھی موجود ہے. چونکہ قرآن میں کہیں بھی ماں کا ذکر اکیلے سے نہیں ہوا, والدین کا ذکر ہوا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں تعارف کروانے والا ہوں. میرے ساتھ آج موجود کون ہے؟ وار دوں ان کے نام پر میں اپنی دارین, تاج بناؤں سر کا ملے جو ان کی نالین. سکھائی جنہوں نے مجھے محبت حسنین کریمین. تشریف فرما ہے ڈاکٹر احمد نصیر کے معزز والدین. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया। आप सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, आप बेहतरीन एंकर भी रहे। आप ऐसी गुफ्तगू करते रहे कि आज भी मैं वैसी गुफ्तगू नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने वक्त दिया। आप वालिद भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप मेमार भी हैं, आप नाक़िद भी रहे मेरे, लेकिन जब आपने तनकीद की वो बराए तामीर साबित हुई। हम लोगों से वक्त लेते हैं, सहाफ़त करते हैं और दुनिया के गम हमको कभी अपनी लपेट में ले लेते हैं, मगर हमारा काम है कि मुस्कुरा कर अपने नाज़रीन से मुखातिब होना और स्क्रीन को वक्त देना। आप ये काम कर चुके, अभी भी करते हैं। आपने एक पौधे को परवान चढ़ाया जो कि नाज़रीन डॉक्टर अहमद नसीर की सूरत में देख रहे हैं। कैसा लगता है? चूंकि आप नसीर अहमद हैं और मैं अहमद नसीर हूं, अपने ही शक्ल में अपने आप को स्क्रीन पर जब देखते हैं कैसा महसूस करते हैं? जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि मैं लोगों की, दुखी मखलूक की, अल्लाह की मखलूक की बेहतरीन तौर पे मैं खिदमत कर सकूं। तो मैंने अपने सहाफ़ती दौर में जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैट्रिक से शुरू हुआ 1974 से लेकर आज तक मुझे जो वक्त मैंने गुजारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बनाया है कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर मौका पे जब भी मैं मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता रहा, वहाँ भी मेरा यही मिशन था, और जिन सहाफ़ियों से, बड़े सहाफ़ियों से मैं वाबस्ता रहा, उनका भी यही मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं अपना वो मिशन जो है वो निभा रहा हूँ। और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि ये जो मेरा बेटा डॉक्टर अहमद नसीर है, तो ये मेरी उस फिक्र को लेकर आगे बढ़ा है, और इंशाअल्लाह जो मैंने देखा है इसमें क्रिएटिव सलाहियतें तो इसमें हैं, लेकिन वो दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से वो एक भी दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करता। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किस तरह लोगों के काम आ सकता हूँ, कब काम आ सकता हूँ। ना दिन को ना रात को वो ये नहीं सोचता कि क्या वक्त है, सर्दी है, गर्मी है, मौसमी सूबतें हैं। वो सबको नज़रअंदाज कर कर बालाए ताक रख के वो दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से, लोगों की खिदमत के हवाले से जो उसके बाप का मिशन था, उस मिशन को लेकर इंशाअल्लाह आगे जा रहा है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इसे अपने मिशन में कामयाब करे। जो इसके बाप ने शुरू किया था वो इसको आगे बढ़ा रहा है। मुझे खुशी है, और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे अब जो है ना वो शाम हो रही है, ठहराव आ जाता है। जो ठहराव तो आ गया है, अब चल चलाओ है सबका। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआगो हूँ, दिल से दुआगो हूँ कि ये मेरे इस मिशन को जो लोगों की खिदमत के हवाले से शुरू हुआ है, ये उसको निभाता रहे। आपने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। बसा औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं कि वो बहुत टूट फूट का शिकार होता है, मगर बात करना ज़रूरी होता है, स्क्रीन को वक्त देना होता है, और आपको यूँ ही लगता है कि हम बहुत खुश हैं, मगर हम तो अदाकारी के जोहर दिखला रहे होते हैं। मैं आपको माजी के धुंधलकों में लेके जाना चाहता हूँ और एक वाक़या अम्मी अब्बा के हवाले से और अपने हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन अक्सर मुझसे पूछते थे कि बताओ बेटा, हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा कौन सा है। मैं साल हर साल मुख्तलिफ जवाब ये सोच कर देता रहा कि शायद अब कि मैं सही हूँ और मैं सही जवाब तक पहुँच गया हूँ,
जब मैं छोटा था तो मेरा ख्याल था कि आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी हुआ करती है, लिहाजा मैंने कहा कि अम्मी अब्बू हमारे कान। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहरे हैं। तुम्हारा जवाब गलत है, तुम मजीद सोचो, हम तुमसे दोबारा फिर कभी पूछेंगे। बहुत से साल गुजरने के बाद उन्होंने फिर से पूछा। मैंने पहले से ज्यादा जहन पर जोर देते हुए यह जवाब दिया कि अम्मी अब्बू हमारी आंखें हमारे जिस्म का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। अम्मी अब्बू मुझको झंझोड़ कर ये ताकीद करने लगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग अंधे हैं, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत है। लेकिन उन्होंने मुझसे यह कहा कि भाई तुम तेजी से सीख जरूर रहे हो। फिर नाकामी हुई और मैं मजीद इल्म की तलाश में मगन हो गया। अब एक साल ऐसा आया कि मेरे दादा वफात पा गए। हर कोई गमज़दा था, हर कोई रो रहा था, तड़प रहा था, बिलक रहा था, गमगीन था। यहां तक कि मेरे वालिद साहब भी रोए। वालिद का बिलखुसूस जिक्र करना इसलिए जरूरी समझा कि इससे पहले मैंने वालिद को बहुत कम रोते देखा, क्योंकि मैं छोटा था और बचपन में इतना बहुत कुछ नहीं देखा। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो मेरे अम्मी अब्बा ने एक मर्तबा से फिर मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे पूछा कि बताओ अहमद, हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त ये सवाल मेरे दादा की मैयत तैयार है, वो अपनी आखिरी आराम गाह की जानिब गामज़न है। इस वक्त मेरे वालिदैन मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं समझता था कि ये मेरे और मेरे वालिदैन के बीच में सिर्फ फकत एक खेल है। मैं हैरान हुआ। उन्होंने मेरे चेहरे पर आया उलझन को पढ़ लिया और कहा, यह बहुत अहम सवाल है, यह जाहिर करता है कि तुम अपनी जिंदगी में खोए हुए हो। हर वो जवाब जो तुमने हमें दिया वो गलत था और इसकी वजह से हमने ये जान लिया कि तुम इल्म की राह पर गामज़न तो हो मगर जवाब गलत दे रहे हो। लेकिन आज वो दिन है कि तुम्हें जिंदगी का ये अहम सबक पढ़ाना इंतहाई जरूरी है। तो उन्होंने मेरा मुंह माथा चूमा, मुझे करीब करके मेरी जानिब देखकर आंखों में आंसू लेकर ये फरमाया कि हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा हमारी आंखें नहीं, हमारे कान नहीं, हमारे हाथ नहीं, बल्कि बेटा हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा हमारे कंधे हुआ करते हैं। मैं हैरान हो गया कि अम्मी अब्बू, क्या इसलिए कि इन कंधों ने हमारे सर को उठा रखा है? उन्होंने कहा नहीं, इसकी वजह यह है कि जब आपका कोई प्यारा किसी तकलीफ में हो तो ये इसके सर को सहारा देते हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी इन कंधों के सहारों की जरूरत होती है। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूं, भाई साहब ने ये फरमाया और अम्मी ने ये फरमाया कि मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूं कि जब भी तुमको इन कंधों की दुनिया में जरूरत पड़े या जिंदगी में जरूरत पड़े तो बहुत सारे तुम्हारे अपने, तुम्हारे प्यारे और वो मुखलिस लोग हों कि जरूरत पड़ने पर तुम उनके कंधों पर अपना सर रखकर रो सको। ये वो वक्त था कि जब मैंने सीखा कि जिस्म का अहम तरीन हिस्सा खुद गर्ज नहीं हो सकता। जिस्म का अहम तरीन हिस्सा खुद गर्ज नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे कांधे खुद गर्ज नहीं है और खुद गर्ज वालिदैन खुद गर्ज बेटा पैदा नहीं कर सकते। जिन्होंने बचपन ही से अपने बेटे को सहारा देना सिखाया हो वो खुद गर्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल से मैं ये बात कहने का हक बजानिब हूं कि मैं वो डिजिटल मीडिया के इस दौर में वाहिद एंकर हूं, वो इकलौता सहाफ़ी हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के साथ बैठा है और बैठा हुआ उनका इंटरव्यू कर रहा है। मैं अपनी अम्मी की जानिब बढ़ूंगा, अम्मी से बात करूंगा। अम्मी मुस्कुरा रही हैं, अम्मी ने सारा मुझको बोलना सिखाया और अम्मी अब मुस्कुरा रही हैं। फिर अब्बू की जानिब बढ़ूंगा और चूंकि मेरा जन्मदिन भी है, ये तहाइफ जो है ये आप हमारी मेज पे पड़े देख सकते हैं और इसमें से एक ज़ाहिर के खास तोहफा भी है जो अम्मी और अब्बू की जानिब से है, वो भी हम खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अम्मी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं?
ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटा। महसूस कैसा करते हैं जब बेटा खूबसूरत हो बहुत और अच्छा। लड़कियों की लंबी कतार लगी हुई हो, जी। लड़कियां चाहती हो कि भाई ये लड़का हमको मिल जाए, तो माँ का तो सर फखर से बुलंद हो जाते हैं। बेशक मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मेरा बेटा दीन इस्लाम दी राह ते चल रहा है। हाँ। हाँ, नबी पाक दे नमाज़े बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ, बहुत खुश नसीब माँ हूँ। मैं इस काबिल नहीं थी जो अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दिया, सुभान अल्लाह। दे दिया मुझे अल्लाह पाक ने। सुभान। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। हाँ। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की लंबी जिंदगी अता करे। हाँ, सुभान। अल्लाह पाक मेरे बच्चे ਨੂੰ खुशियां अता करे, आमीन। लंबी जिंदगी अता करे मेरे आमीन। बच्चे ਨੂੰ, आमीन। मेरे बेटे ਨੂੰ अल्लाह पाक हजारों हाँ खुशियां देखना नसीब अच्छा अम्मी करे। मुझे बताएं, जब हम प्रोग्राम करते हैं ना हाँ जी, तो लोग मुझे अजीब अजीब गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए उन लोगों को क्या कहेंगे आप? हाँ आप उनको दुआ दें, हाँ, अल्लाह पाक उन्हें भला करे। आप कहें अल्लाह उनको सलामत रखे, हाँ, सलामत रखे अल्लाह पाक। अल्लाह तुमको खुश रखे, उनको हिदायत बोले दे। अल्लाह तुमको खुश रखे, अल्लाह तुमको खुश और रखे। जो तुम गालियां देते हो अल्लाह तुमको खुश रखे। हाँ, खुश रखे। छोड़िए अल्लाह भर दे पाक- खुशियों हाँ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, हाँ हिदायत भी दे और खुशियां हाँ, भी खुशियां भी दे अल्लाह दे। पाक। ये है वालिदैन। हाँ, मैं ये है बहुत अम्मी खुश हूँ। मैं इस काबिल नहीं थी बेटा, हाँ। मैं इस काबिल नहीं थी जो अल्लाह पाक ने मुझे अता कर ये दिया तो रब का करम है कि मैं इनके यहाँ हो गया, हाँ बस। वरना अल्लाह क्या पाक मालूम का- कहाँ हो जाते, हाँ, हमारे ते- इख्तियार ही नहीं है। हाँ, नबी पाक दे नवासियां दा सदका अल्लाह पाक मेरे बच्चे ਨੂੰ लंबी जिंदगी खुशियां अता करे, मेरे घराने ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। सब ਨੂੰ खुशियां अता करे। नाज़रीन मोहतरम, मैं ये तो अम्मी के जज्बात हैं, अम्मी आंसू भी बहाती हैं और जल्दी रो पड़ते हैं, दिल इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि मोहब्बत करने वालों को दिल कमज़ोर होते हैं। मगर ये शख्स इंतहाई बड़े दिल का शख्स है, ये बड़ा आदमी है। मैं अगर किसी शख्स से सबसे पहले मुतासिर हुआ हूं तो ये जो शख्स मेरी बगल में बैठा है ये वही शख्स है कि जिस शख्स से मैं मुतासिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बाप है और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब मैं इनके हवाले से दुनिया में पहचाना जाता हूँ, माशरे में इनके हवाले से मेरा एक नाम मकाम पैदा होता है, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह है सर बुलंद। आज भी वो 14वीं का चांद, कुत्ते हजारों भौंकते गलियों में मर गए, हमें क्या किसी की परवाह, हमें क्या किसी की खबर, लेकिन खबर रखते हैं हम खबर रखते हैं और आखिर तक रखेंगे खबर, अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो खबर रखेंगे। मैं वाली साहब की जानी बढ़ूंगा क्योंकि फिर ये तहाइफ भी हैं, हमको इनकी अनबॉक्सिंग भी करनी है और बहुत कीमती तहाइफ है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वालिदैन की जानिब से हों वो तो कीमती हुआ करते हैं। अब्बू की जानिब बढ़ता हूँ और एक चुटकुला भी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि हम तो मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं ये भी पूछूंगा कि अम्मी अब्बू की जो शादी हुई ये मोहब्बत की थी या इनके अम्मी अब्बू ने करा दी, ये मैं अब अब्बू से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी तो मालूम नहीं क्या कहे इस बात पे भी रो पड़े, ये अब्बू से पूछूंगा। उसके बाद अब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ये अब्बू की जानिब सवाल रखा। मुझे अब्बू बताइए कि चूंकि अभी तो हमारी उम्रें हैं, बल्कि हमारा तो दिल नहीं चाहता अभी, क्योंकि हमको तो भी बहुत काम करना है, लेकिन ये कि आप हमारी शादियां करेंगे जहां हम चाहेंगे, जहां हम कहेंगे, लेकिन एक लंबी कतार लगी हुई होती है भाई लड़कियों की कि हम शादी करना चाहती। अभी जो कमेंट्स में करना चाहती वो भी बता दें, जो करना चाहती उनसे भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात हुई। लेकिन ये कि आप अब्बू मुझको बताएं कि आप दोनों की शादी ये आपके अम्मी अब्बू ने कराई या आपने अम्मी अब्बू से कहा कि भाई हम करना चाहते हैं, यानी आपने अम्मी को पसंद किया या अम्मी ने आपको पसंद किया, जरा बता दें, क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नाज़रीन तक ये बात जरा पहुंच जाए। बात यह है कि हर किसी के बाप और माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की शादी बहुत जल्द हो जाए। मेरे अम्मी अब्बू की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे बेटे की जल्द शादी हो जाए और इसके घर में रौनक हो जाए और हम बच्चों से खेलें। इसी तरह जो मेरी मिसेज हैं, इनके अम्मी अब्बू की भी ख्वाहिश थी तो शादी हो जाए। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह को मंजूर था, हमारे मुलाकात हो गई घर वालों की, तो मेरी अम्मी जो थी वो इनके यहाँ गई और वहाँ पे जाके रिश्ता मांगा। आपको पसंद आई होंगी अम्मी वैसे पहले? वो ज़ाहिर है कि हम एक शहर में रहते थे, हमने एक दूसरे को ज़रूर देखा हुआ था, लेकिन वहाँ से जो हुक्म आया हुआ था उस हवाले से उस हुक्म के मुताबिक
मेरी माँ इनके घर चली गई और उन्होंने इनकार नहीं किया और हम रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी बीवी साबित हुई है ये? मुझे फख्र है। अच्छा, मैं कदर करूंगा मार जा रहा हूं, एक और सवाल लेने। आप ये चाहेंगे कि अगर हमको मुस्तकबिल में अल्लाह करे बीवी को मिलती है तो वो ऐसी हो, किरदार की, अखलाक की, वफा में, शार में? मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है और इससे बढ़कर प्यारा रिश्ता और कोई है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने औलाद को जन्म देने के बाद उनकी बेहतरीन तरबियत करना होती है, ऐसी तरबियत करना होती है जिसके अल्लाह और उसका रसूल जो है ना वो खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। उसकी मखलूक में इजाफा करते हैं मियाँ बीवी बनने के बाद। और फिर जो उनकी औलाद होती है, अगर वो लोगों की खिदमत करती है, काम करती है और फिर वो मुआशरे में एक मकाम हासिल करने के बाद अल्लाह की मखलूक में इजाफा का सबब बनती है शादियों के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने खिदमत की आवाम की, और अब मेरी औलाद जो है वो लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी शादियाँ इसी तरह जल्दी होनी चाहिए। बेशक वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैं इस बात का कोई मुखालिफ नहीं हूँ कि अगर कोई लव मैरिज हो जाए, अगर हो जाए और जल्दी ही आपके आंगन में बहारें आ जाएं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात मैं एक और करता चलूँ, लेकिन सवाल एक है, अब मैं छोड़ दिया आपको। जी कि आप ये चाहेंगे कि यानी हमको भी किरदार में, वफा में ऐसी बीवी मिले? अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मेरे जो मैंने आपको जवाब दिया है कि उसने बेहतरीन तरबियत की है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने आपकी जो मिसेज है वो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत ना करे? तो मैं समझता हूँ इस बात को, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये वफा शायर बीवी मुझे मिली है, अल्लाह पाक आपको भी ऐसी अच्छी नेक और सुगड़ बीवियां अता करे। तो दूसरी मैं बात ये करना चाह रहा था कि मुझे आज ये फख्र है कि मेरे सारे बच्चे, मेरी 3 बेटियां, जिनमें से मेरी बड़ी बेटी जो है वो MSc ज़ूलॉजी है, उससे छोटी बेटी जो है वो मेरी MSc केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से है, और जो मेरा सबसे छोटी बेटी है वो डॉक्टर है। तो ये जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे ये भी फख्र है कि आपने थोड़े वक्त में और अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना YouTube चैनल बनाया और अपनी डिग्री लेने से पहले ही अपना चैनल को कामयाब किया, अल्लाह पाक ने उसको कामयाब किया। इसी तरह मेरा छोटा बेटा जो सरदार मोहम्मद अली अहमद है, उसने भी MSc मैथ्स कम्युनिकेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं अपनी पूरी जो मेरे इर्द गिर्द बहार जो आई हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे दोनों बेटों ने ये जो चैनल बनाए हैं, इस पे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के हवाले से वो काम करते हैं और थोड़े वक्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर दुनिया को साबित कर दिया है कि आगे चल के इंशाअल्लाह अल्लाह पाक और कामयाबियां अता करेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको और कामयाबियां अता करे। और कोई आपका सवाल है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं एक आपको 2 अशार जो हैं वो मैं वो आपको कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये सारा टैलेंट जो है ये मेरा नहीं है, मेरा
कुछ भी मेरा नहीं है। मुझ में जो कुछ अच्छा है वो इनकी जानिब से है, और जो कुछ बुरा है वो मेरा अपना है। मेरी कमियां, मेरी कजियां, मेरी कोताहियां वो मेरी अपनी हैं। मैं गिरता हूं तो अपनी कमी और कोताही के बायस, मगर उठता हूं तो इनके हौसले से। वही जो कांधों वाली बात बताई, जो कांधे की मिसाल देकर मैंने सहारा देना बतलाया आपको, वो मेरा नहीं है, वो इनकी जानिब से है। अल्हम्दुलिल्लाह तहाइफ हमारे सामने है, मगर जो अम्मी अब्बू की जानिब से है वो ये है। तो इसको अभी हम ओपन करेंगे। मैं तो अम्मी अब्बू से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये खुद से ओपन करें और देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये जब हमारे सामने आएगा और आपके सामने भी आएगा तो आप भी बिलखुसूस जो हमारे नाज़रीन हमको देख रहे हैं भारत से, चूँकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ भाई, और भारतीय जो हैं मुसलमान और जो दीगर हमारे दोस्त हैं किसी भी मज़हब से हों, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि हमारी फैमिली है वो। तो अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो, जी हाँ, शौक से देखते हैं आपकी वो। बहुत मेहरबानी, आप देखते हैं। और मैं तो जिसारत नहीं करूंगा कि मैं इनको ओपन करूं, ये वालिसा भी करेंगे और अम्मी इनका हाथ बटाएंगी बाद में, बल्कि करीब करीब हो जाएं। अम्मी आप भी ज़रा ये इसको ज़रा उठा लें। हाँ, ये चीज़ सब खोले फाड़ने इसको। ये है क्या इसमें, मुझे तो बताएं। ये है 15 प्रो मैक्स अच्छा नेचुरल टाइटेनियम। ये अब आप खींचेंगे। हम आप खींच दें, आप खींच दें, खींच दें, खींच दें, आप नीचे से भी खींच दें। बस फोन नहीं ये इसको हम ये नाज़रीन मोहतरम आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम आप ये देख रहे हैं। इसको उतार दिया जाए भाई, मैं पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देखें नाज़रीन मोहतरम, मेरे जन्मदिन के मौका पर अम्मी अब्बू की जानिब से मुझको आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम अब मुझको तोहफे में दिया गया है। आपको इस्तेमाल करना ये मुबारक हो। आपकी बहुत आप, मेहरबानी। अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र करे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें और आप ऐसी बेशुमार चीज़ें जो आती रहें नई नई, वो आप उनको इस्तेमाल करते रहें। अल्लाह पाक भरपूर तरीके से आपकी तमाम ख्वाहिशात जो इलाहिया, हैं इलाहिया, वो सारी अल्लाह पाक पूरी इलाहिया, करें। इलाहिया। नाज़रीन मोहतरम, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स अम्मी अब्बू की जानिब से दिया गया। मैं इसको और साथ में रख रहा हूँ। ये एक मेरी और मेरी मिसेस की तरफ से, हम आपकी आपकी बकरी। माँ की तरफ से, ये आपकी माँ की तरफ से ये अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अब मेरे सर पे आपका साया कायम दायम रहे। मैं इस काबिल ना था मगर आपने इस काबिल बना दिया। तो बेटा मुझे- मैं समझता हूँ कि वालिदैन जब अपनी बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब उनकी औलाद जवान उनके साथ खड़ी हो जाती है तो वो एक मर्तबा से फिर जवान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनमें एक नए सिरे से एक ताकत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुनिया की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की ताकत, मैं उस ताकत की बात कर रहा हूँ, दूसरी ताकत की बात नहीं कर रहा। तो आज मुझे खुशी है कि आज मैं बहुत मजबूत हूँ और अल्लाह ने मुझे फिर से ताकत दी है। जो मैं मिशन लेके चला था, जो मेरा अज़म था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मिशन मेरा वो जारी और सारी रहेगा। और मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी पूरी लाइफ में लोगों की खिदमत के हवाला से मैंने मुख्तलिफ अखबारात में काम किया, मैंने नवाए वक्त में काम किया, मैंने जंग में काम किया, मैंने अभी भी मैं रोज़नामा पाकिस्तान और डेली डांस से वाबस्ता हूँ और 50 साल से ज़्यादा मैंने सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी हैं। और इन सहाफ़ती खिदमात में
मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा मिशन था कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। अम्मी आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, अपना हाथ लाइए, मैं लंबी जिंदगी अता आपका शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। और आखिर पर बस मैं ये कहना चाहूँगा आपसे भी और तमाम नाज़रीन से भी और अल्लाह के हुजूर दुआ ये है, और आप भी यही क्या करें कि अल्लाह जो तूने देना है वो बिन मांगे ही अता कर दिया कर, और जो कुछ तूने नहीं देना वो मांगने की तौफीक ही ना दे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस और एक शेर कि ली खमसतुन उतफी बिहा हर रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। हमारा दीन, दुनिया और आखिरत इसी में है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस पे अमल पैरा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।